Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SST classes. So as we all discussed about the exam pattern and the question paper pattern in yesterday's classes, so today we will be discussing about some questions that are related with the sample paper or the pattern of the examination 2020-21-22. तो 2022-21-22 का जो एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन पेपर पैटर्न है उसके आधार पे बहुत सारे क्वेश्चंस है. वैसे मैंने तो सेम टू सेम जो सैंपल पेपर है वैसा तो नहीं बनाया है, लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं और ये हम लोग केवल चैप्टर 1 के कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे. राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसी चैप्टर से क्वेश्चंस बनाए हैं और उसी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे. Okay, when was Napoleon defeated? Anyone? Okay, let's start from girls. Okay, what's her name? You are a girl? Okay, Ria. I will not be telling the answer, you all will be. Okay, 1815. Battle of Waterloo, Napoleon was defeated. Okay, where was Giuseppe Mazzini born? Okay, Bittu. Giuseppe Mazzini was born in Genoa. Okay, very good. Who was called the architect of Germany's unification? Okay, Satyam. Okay, very good. So, which of these symbolized being freed? आजाद होने का सिंबलाइज कौन करता है? आयुब, you want? तसीम. ओके, ब्रोकन चेन्स. ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इसका बहुत जिक्र किया गया है. सैकल्स, ब्रोकन सैकल्स, चेन्स. What happened in the Treaty of Constantinople of 1832? You will always come. I want some more new faces. I want new faces. Okay, what is his name? Nitish. Okay, I will ask you one more question in the same context. Okay, Greece was recognized as an independent nation. So किस एम्पायर में था पहले? किस एम्पायर से अलग हुआ था? हो सकता है कि आ जाए यही क्वेश्चन. थोड़ी देर. Do you know the answer? Hey, go. Anyone? So Greece was incorporated in Ottoman Empire. So कॉन्स्टेंटिनोपल का जो ट्रीटी हुआ था उसमें ग्रीस was declared as an independent nation. Which of these was incorporated into United Kingdom in 1801? So now this is a tricky question. Anyone? Okay, Razbir. Okay, why not Scotland? Sir, because all in one Scotland nahi Yeah. hai.
नो, लेकिन स्कॉटलैंड भी तो हुआ था इनकॉर्पोरेट, लेकिन भाई ये आप स्कॉटलैंड क्यों नहीं है और आयरलैंड क्यों है? अब ऑल इन वन में पढ़ लिए तो भाई ओके गो. सो स्कॉटलैंड एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ना, 707, and Ireland was incorporated in 1801. Remember that these both are incorporated in United Kingdom of Great Britain, but one is in 1801 and other is in 1807. Which of these was formulated in 1851 from girls? 1815 में क्या फॉर्मुलेट किया गया था? Hey, shut your mouth, boys, please. So now I want from the girls portion, please. Okay, Rakhi, come. Okay, that means it is also a Treaty of Vienna. Yes, means Vienna peace settlement. An idealist society can never be achieved is called Daniel. Okay, good. Utopian society. And so you can see the image given out here. It's given in your book as well as given in your book. You can see it in your book. But what does this in the image of what does each, now remember इमेज को नहीं छोड़ो, इमेज दिया लेकिन इस इमेज के कौन से पार्ट को उसने पूछा है? ईच ड्रॉप्ड लेटर रिप्रेजेंट, ये जो लेटर एनीवन? ओके सौरभ. ओके, दैट मीन्स नेपोलियन जब वापस हार के बाद आ रहा, वहां पे तुम लोग का अच्छा पेंटिंग में डिपिक्ट किया गया है. सो दिस लॉस्ट, सॉरी, दिस ड्रॉप लेटर्स आर सिंबलाइजिंग, एक प्रकार से एलेगोरी है जिसमें दिखा रहा है कि नेपोलियन वापस लौट रहा है अपना टेरिटोरी को हार के. इज दैट क्लियर? यहां पे देखो नाम वाम भी लिखा है. So now two statements are given in the questions below as assertion A and reason R. Read the statement and choose the appropriate option. Conservative regime set up in 1815 sought to curb activities that question the legitimacy of autocratic government. ये assertion है, उसका explanation किया गया है reason में, because they were autocratic. Okay, because मैंने जोड़ दिया है. सो नाउ ये दोनों चीज, कंजर्वेटिव रिजाइम 1815 ट्रीटी ऑफ वियना के बाद बना हुआ कंजर्वेटिव रिजाइम जो सेटअप किया था, उन्होंने ऐसे एक्टिविटीज को हटाने का कोशिश किया या दबाने का कोशिश किया जिसने उसकी मतलब एक लेजिटिमेसी, मतलब उनके वो कितना सटीक है वो गवर्नमेंट, समझ रहे ना, कि कितना लेजिट है, कितना अच्छा है, उस पर सवाल करने वालों को क्या किया, हटाने का कोशिश किया. तो ये जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसकी लेजिटिमेसी में क्या किया, क्वेश्चन करने वालों को करप्ट किया, मतलब हटाने की कोशिश किया. क्यों किया? क्योंकि वो लोग ऑटोक्रेटिक थे. ये एक्सप्लेनेशन है, ये असर्शन है, बताया गया है कि दावे से बोला गया है कि ऐसा किया गया था. तो रीजन जो होता है एक प्रकार से एक्सप्लेनेशन भी है उसका, क्यों, क्योंकि वो ऑटोक्रेटिक थे इसलिए वो लोग ने ऐसा किया. What will be the answer? Anyone common? जो ये लाइन कहा गया है ये सही है या गलत है?
तो ऑप्शन यही है, ए एंड आर बोथ एसर्शन एंड आर ट्रू, दोनों सही है, और आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। मतलब जो ये दे आर ऑटोक्रेटिक जो बोल रहा है, ये सही बोल रहा है एसर्शन के बारे में, और दोनों सही है। जो ये दोनों लाइन दिया है, स्टेटमेंट दिया है, ये दोनों सत्य स्टेटमेंट है, और एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन क्या है, आर रीजन है। क्या ये होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू। ये भी हो सकता है कि बोथ ए एंड आर दोनों सही है, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए इज करेक्ट, ए करेक्ट है, आर गलत, यानी कि एक्सप्लेनेशन रॉन्ग है। ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। कौन सा होगा? एनीवन? ओके, आदित्य कम नाउ। देखो समझो पहले, कंजर्वेटिव रिजाइम्स जो 1800 ए बोझ प्लीज बोलो ना, सेट अप इन 1850 साउथ टू क्रॉप एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट कितना लेजिटिमेट है या कितना सटीक है, उस पे क्वेश्चन करने वालों को क्या किया, उनको क्वेश्चन करने वालों को क्या किया, क्रब आउट किया, मतलब हटाने की कोशिश किया या दबाने की कोशिश किया। बता रहा हूं, कंजर्वेटिव रिजाइम, यानी कंजर्वेटिव रिजाइम जो रिजाइम आया 1815 में आफ्टर ट्रीटी ऑफ वियना, वो उसने क्या किया, ऐसे एक्टिविटीज को हटाया, मतलब उनको दबाने का कोशिश किया, जिसने एक प्रकार से ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट जो था कंजर्वेटिव, उसको सवाल किया कि वो कितना अच्छा है कितना गलत है। तो क्यों किया? ओके, मैं बता दूंगा। एनीवन? ओके, सत्यम। Yes, A is the correct answer. Both A and R are true and R is the correct explanation. क्योंकि वो लोग ऑटोक्रेटिक, बेटा पहले ये समझो ना, ये सेंटेंस समझो कि कंजर्वेटिव रिजाइम जो 1815 में के बाद बना था, वो लोग तो क्या था, सब तो क्या थे, कंजर्वेटिव थे सबसे पहले। जब कंजर्वेटिव थे तो इसका तो वो लोग ऑटोक्रेटिक भी थे, ऑटोक्रेटिव भी थे। बॉर्बन डायनेस्टी वापस आया था ना फ्रांस में, तो एक प्रकार से क्या कर रहा था, कंजर्वेटिव रिजाइम। कंजर्वेटिव रिजाइम क्या कर रहा है, दे आर ट्राइंग टू ऑप्रेस द पीपल। फ्रांस में क्या किया गया था, यानी कि जो भी दोबारा से वो रिवॉल्यूशन का बात करता तो क्या करता, वो सब चीजों को क्या कर दिया था, एक सेंसरशिप लगा दिए गए थे। और जो नए ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट बना था, उसके ऊपर अगर कोई भी किसी प्रकार के गलत सलत सवाल करते तो उसको भी क्या किया जाता था, दबा दिया जाता। क्यों दबा दिया जाता था बेटा? क्योंकि वो लोग ऑटोक्रेटिक थे ना। ऑटोक्रेटिक इसलिए थे क्योंकि ऑटोक्रेटिक मतलब उन लोगों के पास पावर था। तो सिंपल, दोनों सही है। ये जो कहा गया ये भी सही है, कंजर्वेटिव मतलब ऑटोक्रेटिक ही है, ये भी सही है। तो दोनों क्या है, आर एंड ए एंड आर आर बोथ करेक्ट, और ए भी आर भी ए का सही एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि वो लोग ऑटोक्रेटिक थे, इसीलिए ये सारे एक्टिविटीज को दबा पा रहे थे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम दबा पाएंगे, बिकॉज पीपल विल राइज देयर वॉइस। अब यहां पे जब भी कंजर्वेटिव रिजाइम के अगेंस्ट में कोई भी सवाल उठाएगा तो उसको क्या किया जाएगा, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ऑप्रेस करेगा ही। ये सर नो, और ये ही हुआ है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट्स टॉक नेक्स्ट। So now this is the case study. Now this is a case study about Mazzini. One such individual, अब ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, दो आएंगे ऐसे। अब ये गारंटी नहीं दे सकता हूं कि मैं हिस्ट्री से आएगा, सिविक्स से भी आ सकता, कहीं से भी आ सकता, लेकिन प्रैक्टिस तो कर सकते हो ना किस प्रकार के आएंगे। तो ये चैप्टर से हम लोग एक बनाए। One such individual was Italian revolutionary Giuseppe Mazzini, born in Genoa. Why should I show question first? You should read the extract or the resource first, then only after you will follow the questions.
Let me read out. He became the member of the secret society Carbonari. उन्होंने शुरुआती अपना करियर कहां से किया था? कार्बोनारी से किया था. That was also a secret society. As a young man of 24 साल की उम्र थे, he was sent in exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria. लिगुरिया में रिवोल्ट अटेम्प्ट करने के लिए असफल हुए, लेकिन पकड़े के उनको कहां भेज दिया गया? एग्जाइल भेज दिया गया. He founded two underground societies. First, the Young Italy in Marseilles. ये मार्सेल्स कहां पे? फ्रांस में है. अब देखो फ्रांस में ये इतना, देखो गुसिप माजिनी एग्जाइल किए गए और फ्रांस में जाके इसलिए बना पाए क्योंकि फ्रांस में क्या कर रहे थे बेटा? रिवोल्ट कर रहे थे और वहां के लोगों का दिमाग मैच, आइडियोलॉजी क्या हो रहा था? मैच हो रहा था ना. यंग यूरोप इन बर्न, स्विट्जरलैंड, हुज मेंबर्स वे लाइक माइंडेड, एक ही सोच रखने वाले लोग थे. मतलब जैसे माजिनी का सोच था वैसे ही सोच रखने वाले लोग ही उस ग्रुप में शामिल होते थे. यंग माइंडेड, पोलैंड से भी आए, फ्रांस से भी आए, इटली से भी आए, जर्मन स्टेट से भी आए. माजिनी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड. इंसानियत या मानव के एक नेचुरल यूनिट, एक टुकड़ा नेशन होना जरूरी है. अब क्यों? क्योंकि सारे लोग तो एक प्रकार के नहीं हैं. दे आर वेरियस लिंग्विस्टिक ग्रुप. तो एक प्रकार के लोगों के लिए एक नेशन, एक यूनिट होना चाहिए. जैसे इटालियन स्पीकिंग या इटालियन कल्चर के लोगों को एक इटली देश चाहिए. फ्रांस वाले को क्या चाहिए? फ्रेंच वाले को क्या चाहिए? फ्रांस. एक ये उनका मानना था, ये उनका आइडियोलॉजी था कि वो मानते थे कि जो एक नेशन बनना चाहिए, एक यूनिट बनना चाहिए, वो भगवान ने हम लोगों को क्या दिया है? भगवान का ही ये इंटेंशन है, भगवान का ही ये चाह है कि मानव के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए क्या बने? नेशंस एक नेचुरल यूनिट बने. Italy could not continue to be a patchwork. Italy could not continue to be a patchwork of small states and kingdoms. It had to be forged into a single unified republic with a wider alliance of nations. उनका ये मानना था इटली अब कंटिन्यू नहीं कर पाएगा पैचवर्क, छोटे छोटे टुकड़े में इटली नहीं बटेंगे. इटली में क्या थे? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग भी रूल कर रहे थे, स्पेनिश भी रूल कर रहे थे, साथ ही साथ पेडमोंट, वो तो इटालियन थे. लेकिन इटली एक छोटा सा देश होने के बावजूद भी बहुत सारे पार्ट्स में क्या था? डिवाइडेड थे, सेपरेट. अब एक इटली देखो, बात किया जाए तो एक इटली में पेडमोंट, सर्दियाना पेडमोंट जो था, वो जो था एक इटालियन प्रिंसली हाउस ही थे. वो नॉर्दर्न पार्ट में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, साउदर्न पार्ट में अलग से स्पेनिश. देखो सब जगह से इटली में खिचड़ी बना हुआ था. सो माजिन जाते थे कि ये पैचवर्क ना, टुकड़ा टुकड़ा से ना बांटे इटली, बल्कि ये एक यूनिफाइड नेशन हो एज अ वाइडर अलायंस विद द नेशन, और देशों के साथ अलायंस करके ये एक अच्छा सा यूनिट बने, एक बने. ठीक है. तो इसमें जो हम लोग इटालियन प्रिंसली हाउस बोल रहे हैं, वो लोग ने भी अपना कदम उठाया है, बाद में देखोगे तुम. लेकिन अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? आरिफ, यू कैन कम. Arif, you will complete all the questions related to this chapter, this extract. Come. The first question from the extract is, the secret societies were set up to establish constitutional monarchy, to restore conservatism, to train revolutionaries and spread their ideas, unify Germany. ऊपर का पहले the secret societies were set up to train revolutionaries and spread their ideas. ठीक है. सीक्रेट सोसाइटीज इसलिए बनाए गए थे कि वो लोग क्या कर पाए? ऐसे नौजवानों को उस ग्रुप में शामिल कर पाए जो
नेशन मतलब माजिनी जैसा सोच रखता है या नेशनलिज्म पे विश्वास रखता है और ऐसे आइडियाज को क्या कर पाए वो लोग सेट कर पाए, मतलब स्प्रेड कर पाए। What consequence did Mazzini face for opposing the government? यानी कि ये लिगुरिया में जो उन्होंने 1831 में जो रिवोल्ट ट्राई किया था उसका कॉन्सिक्वेंस क्या था? एनीवन? गलत है ये। That's why whenever you fill up the OMR sheet, you won't get next chance. You won't get the second try. पता है ये बात? पता है ना? एक बार ब्लैक पेन से उसमें क्या करोगे, फिल करोगे कलर, तो तुमको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। सो दैट्स व्हाई बी कूल हेडेड, कूल माइंडेड, डोंट बी दैट मच ओवर कॉन्फिडेंट। आराम से सोचना है, आराम से करना है भाई। लिखने वाला झंझट नहीं है, तुमको बस पढ़ना है, समझना है, आंसर टिक करना है। सो ही वॉज डिपोर्टेड, एक प्रकार से डिपोर्टेड इज ऑल्सो लाइक एन एक्साइल। सो देखो शब्दों का खेल है, थोड़ा सिनोनियम्स भी याद रखना है, समझ रहे हो ना? ऑब्वियसली लोग यही सोचेंगे, मुझे लग रहा था कि तुम यही सोच रहा है। ही हैड टू फॉर्म मोर सीक्रेट सोसाइटीज। एक प्रकार से लगेगा ना कि डिपोर्टेड का मतलब नहीं पता है तुमको, तो यही लगेगा ना आंसर। क्वेश्चंस के साथ आंसर कैसे मैच नहीं कर रहा है? What consequence did Mazzini face for opposing the government? गवर्नमेंट को अपोज करने के लिए क्या उसको कॉन्सिक्वेंस, आउटकम? He had to form secret societies. ये आंसर बोल रहे तुम? ये उसको एक प्रकार से तुमको पता है ना कि माजिनी ने क्या किया था? फ्रांस से हटने के, सॉरी इटली के हटने के बाद उन्होंने क्या किया था? सोसाइटीज बनाए थे। तो एक प्रकार से ये एक दिमाग में तो रहेगा ना। तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग। ही वॉज डिपोर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे okay, which of these best signifies Mazzini's ideology about nation state? Abhinav? Good. The strength of a nation lies in its unity. We all know that unity is strength. Yes, simple. Mazzini was born in Genoa. ये तो पहले भी पूछ लिए थे। तो अब ये पोजीशन से रिलेटेड है तो इसीलिए बना दिए। Mazzini was a member of the secret society named Girls. Secret society named Girls. Okay, Muskan. Let girls also participate. Sure? पक्का? Okay, good. देखो, don't get confused, okay? Confused इसलिए नहीं होना इसमें क्योंकि अब ये मत सोचना कि इटली यूथ, यंग जर्मनी, अगर यंग जर्मनी यंग इटली डाल दिए थे तो और कंफ्यूजन आ सकता था। तो वो फॉर्म किया है उन्होंने, लेकिन ये शुरुआत में उन्होंने क्या किया है? ज्वाइन किया है, मतलब मेंबर, सबसे अपना करियर यही से शुरू किया है, कार्बोनारी से। अब यही से शुरू करते करते वो लिगुरिया में अटैक करता है, रिवोल्ट करता है, इसलिए एग्जाइल करता है। उसके बाद वो सीक्रेट सोसाइटीज क्या करता है? फॉर्म करता है। A series of assassin में a series of states were set up on the boundaries of France. क्या ये सही है? After Treaty of Vienna, a series of, याद रखना ये सब पॉइंट याद रखना। अब ये लाइन जो बोला गया, अब तुम लोग सोच रहे भाई कि कब हुआ था? ये आफ्टर ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था।
A series of states were set up on the boundaries of France. अब उसका रीजन क्या है? The aim was to prevent French expansion in future. तो अब तुम लोग देख सकते हो ऑप्शन क्या है. ओके दुबे जी. इज इट करेक्ट? यस. बफर स्टेट्स जो हम लोग बोल रहे थे, जैसे कि फ्रांस जो था उसके चारों ओर छोटे छोटे स्टेट्स बना दिए गए, कंट्रीज या स्टेट्स बना दिए गए बाउंड्रीज पे, इसलिए ताकि कल के दिन में फ्रांस, अब देखो मैं बता रहा हूं, ये इसलिए बनाए गए थे कि कल के दिन में फ्रांस एक्सपैंड ना कर पाए. जिसे नेपोलियन के टाइम पे किया था, फ्रांस पावरफुल हो गए थे, वैसा ना हो इसलिए बनाए गए थे. क्यों? जब फ्रांस यहां से बाहर निकलेगा अटैक करने के लिए, तो पहले इन स्टेट्स को अटैक करके आगे बढ़ना पड़ेगा. जब तक इन स्टेट्स को अटैक करते तब तक कंजर्वेटिव्स को क्या मिलते, मौका या समय मिल जाता तैयार रहने के लिए, या वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते. इज दैट क्लियर? सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. अब बेटा क्वेश्चन पेपर तो ब्लैक एंड व्हाइट में आएंगे, इतना कलरफुल तो नहीं रहेगा. दैट बॉय नहीं, प्रसून सही है. ओके, तुम लोग जर्मनी का देख रहे हो इसलिए फ्रैंकफर्ट बोल सकते हो, जर्मनी में है. ठीक है. ओके, मैं बता रहा हूं. अब यहां पे तो इजीली समझ में आ रहा है जर्मनी का झंडा वंडा देख के. वही तो ब्लैक एंड व्हाइट में आएंगे एग्जाम्स में, तो ट्राई टू लुक द पेपर केयरफुली. ओके, दैट्स माय रिक्वेस्ट. कि अब यहां पे तो कलर में अच्छे से देख लोगे, लेकिन एग्जाम हॉल में तो ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा, तो थोड़ा पिक्चर्स को अच्छे से देख लेना, ये नहीं हड़बड़ी में करना है. ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन चर्च सेंट पॉल था. अब इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिए हम, देखो यहां पे. In the German regions, a large numbers of political associations whose members were middle class, professionals, businessmen and prosperous citizens came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all-German National Assembly. On 18 May 1848, 831 elected representatives, most in festive processions to take their place in Frankfurt Parliament, convened in the Church of St. Paul. तो ये सीन का है 18 मई 1848 का सीन है, जहां पे 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्या हुए थे, वहां पे एक प्रोसेशन में शामिल हुए थे नेशनल असेंबली के लिए. हैब्सबर्ग एम्पायर कहां पे रूल करता था? ओके, यू नीतीश के बगल में कौन है? यस, अभिषेक. Okay, you are not confirmed. So, Habsburg Empire was Austria-Hungary. Is that clear? So, this was the questions for today. Is that clear? So, I hope you all understood. तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है. So, tomorrow we will be discussing about the questions from geography. Okay. Geography or either civics, I will decide it, but I'll try from civics. Is that clear? I'll try it from civics. So, thank you. This much for today. Stay safe and stay healthy.